Welcome to this program, Face to Face. This is the third season of this chat show. This program was started in the year 2020, and from that year, we are continuing with this program. The basic objective of this program, because when we started this in 2020, the basic objective was to keep this engagement with the students live, because that was a corona period, and since everything was happening online and physically, it was not possible to meet the students. So we thought that this could be a novel device to maintain that engagement and interaction. And last year also it continued the same way, because again the second wave had affected us all. This year, luckily, we are more or less in the normal. I can't say that it's completely normal, because nobody knows as to what is going to happen tomorrow. But till this date, we are working in the physical mode, but this program is still on. So before proceeding further, let me tell you about Delhi Metropolitan Education, DME. DME is one of the premier institutes affiliated to Guru Gobind Singh Indraprastha University. We have 3 schools and 4 academic programs to offer. The 3 schools, besides the media school, we have the management school and the law school, and the programs which are being offered besides BAJMC, BBA, and then BA LLB and BBA LLB, these programs are there running in DME. And DME is one such institute which always try to live to the expectations of the students, and we are also always ready to meet whatever challenges are coming in our way. And during this COVID-19 period, we try to maintain that whole education and the learning process enriched, which could otherwise would not have been possible. And we all try to make use of the digital technology to not only to continue with the theory classes, but also the practical classes, because media is one such subject wherein practicals are very, very important. So even we try to do our best to do that all with the help of digital technology. So everything, the study material, even the internship, we provided to the students in the virtual mode, in the online mode, because the media houses were not entertaining the students in their physical spaces. So let us look into as to what all DME does as far as education and the learning process is concerned. In DME, we believe in engagement and empowerment of students. And since the time this COVID-19 struck in 2020, we intensified this whole process. For the education sector, it was a big challenge. At DME, our small dynamic team decided to take this challenge head-on. We organize different kind of programs, different webinars, wherein the distinguished people from the industry and other walks of life, they are invited to interact with the students. We try to keep them engaged in taking out newsletter, writing stories, editing stories, and not only that, they make posters, they make cartoons, they write pieces for the newsletter. Mentoring cell at DME is a very unique feature in the ecosystem of education. While the subject teachers forge the knowledge domain strongly, it is the mentors who reach out to students in difficult times. During pandemic, when our students faced loss of their loved ones, home isolation, and several other family issues, mentors ensured that students remain cheerful, lively, and stay connected with us. We have ensured that our students are treated with compassion, warmth, and gentle touch. And it has been our endeavor to treat all the academic activities of our students, which includes PSDA, internal assignment, and various other curricular activities accordingly. Research Cell also pays huge emphasis on interdisciplinary nature of research in order
To promote this, the research centers of the research cell were also motivated to join with each other and conduct research activities for students, faculties within DME and outside DME. While the strong academics and great industry connect is building great lawyers, media persons and managers at DME, we at Mentoring Cell are enabling these future leaders to be compassionate, emotionally strong and resilient for any times to come. We empower the students. All the schools of DME, they have their students council. In DME Media School, this council is spark. They organize the program themselves, they take their own decisions and they mobilize the students for all the good cause. Art has the power to unite and connect during the times of crisis. Bringing people together, sharing, soothing and inspiring are powers of art, which have been made empathically obvious by the DME cultural societies during the COVID-19 pandemic. By taking different innovative approaches in organizing various virtual competitions and events in which the students of DME have taken part with great enthusiasm and proved that DMEians are unstoppable. Care with compassion is motto of DME. During Corona period, we were always with our students. Their well-being is primary for us. We take care of our students. We met the expectations of the students, of the parents and above all of the industry. The placements this year were better than those of the previous years. DME is committed to supporting its students in all possible ways. Welcome again to Face to Face. So now telling you something more about DME Media School. DME Media School is one such media school which always works on the growth and betterment of students in terms of academics and all co-curricular and extracurricular activities. And we have some such kind of activities, some such programs which are considered the flagship programs of DME Media School. And I would like to make a mention in this regard about the International Media Conference ICANN, which has entered into into the 5th year. And this year only the 5th edition is going to take place in the month of July. And this is a conference which during the Corona period turned into a 10-day digital live conference, which happened for the first time in the world. Besides this, we also have another flagship program, that is CIFI, that is Cineasta International Film Festival, which also we have conducted 3 editions of this film festival. Then we have B.G. Varghese Lecture Series, which is a monthly spatial lecture offered by some eminent media educator or the journalist or any other industry person. And during this COVID period, we also invited people from other countries to deliver lectures as part of B.G. Varghese Lecture Series. And during the last few months, the eminent people joined from the US, from UK, from Iran and other countries. And besides that, we also hold this media convention, the convention of the media students, Vritika. We also offer the awards in the name of eminent journalist Ganesh Shankar Vidyarthi. That's a Ganesh Shankar Vidyarthi Award for excellence in journalism, all that we do. Now, talking about particularly of this program, this is a program, as we understand, as I already told you, is a chat show. Which is between the dean and 3 students. These 3 students are drawn from each of the 3 batches. So in today's program as well, one student representing the 2019 batch, another one 2020 batch, and the third one is from 2021 batch. So before proceeding further, let us have a look as to who all students are there in today's episode.
Welcome back again to Face to Face. Now we all know not only the names and the faces, but also the traits, the characteristics and the achievements of all the students who are participating in today's episode. So to name all these students, we have Aditi Katyal with us, who is from 2019 batch. And this is her third program because she has been there in the last 2 years, last 2 seasons as well. And then we have Rishabh Patel with us, who belongs to 2020 batch. And last year also, he was a part of this series. And then we have Khushi Srivastava, who is from the junior most batch, that's 2021 batch. And obviously, she is participating in this program for the first time. Welcome everybody to this show. And as it is customary, we will start from the senior most person. So starting from Aditi. Aditi, you have been part of this program, and incidentally, both the time it was under COVID-19 in 2020 and 2020 batch, 21 batch and 21 year. And when we say COVID-19, then obviously that was a time which was full with lot of restrictions and all, and the classes were also happening in the online mode. Now everything is in the physical mode, and before you will finally leave the college, obviously you people and your batch is very much welcome in the last semester of your career. So if you just look into this whole topsy-turvy things which happened during the last 3 years, you joined in the physical mode, and then in the second semester, everything went online, and then again offline in the physical mode. So how do you look back when all this experience is before you? What will be your experience, your expression, narrating this whole journey? Good afternoon, sir. Thank you again for giving me this wonderful opportunity. सर जब स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में तो बहुत हम लोग सब खुश थे कि कॉलेज जाएंगे, एक नया एक्सपीरियंस होगा. फर्स्ट 6 months मैंने काफी कुछ मैं अलग अलग सोसाइटीज में गई, मैं थिएटर में गई, मैंने काफी थिएटर में पार्टिसिपेट किया. उसके बाद सडनली हमारा अभी प्लान खत्म ही नहीं हुआ था, हमने बहुत कुछ और डिसाइड किया था, अभी ये करेंगे और नुक्कड़ नाटक करेंगे और स्टेज प्लेस करेंगे, और सडनली लॉकडाउन हो गया. हमने एक्सपेक्ट किया था कि 1-2 महीने में खुल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बट क्या हुआ, वो 1 साल चला. बीच में काफी अप्स एंड डाउन्स आए, फैमिली सब कुछ हुआ. उसके बाद अचानक से फील हुआ कि हम कुछ सीख ही नहीं पा रहे, क्योंकि हम अचानक से घर में हो गए. हम लोगों का एक फिजिकल मोड की आदत थी, हम लोग सब सामने दिखते थे, प्रैक्टिकली चीजें मिलती थी, अचानक से सब कुछ बंद हो गया. फिर उसके बाद उसकी भी आदत पड़ गई, क्योंकि हमने घर बैठ के इंटर्नशिप स्टार्ट कर ली, कुछ कुछ सीखना स्टार्ट किया. मैंने रेडियो सोसाइटी ज्वाइन कर ली, क्योंकि वो उसमें उस समय सबसे ज्यादा एक्टिव थी, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया. काफी कुछ किया. उसके बाद फिर हमने वर्चुअली सब कुछ कनेक्ट किया, जैसे कृतिका हुआ, हमने उसमें काम किया, सिफी हुआ, मैंने उसमें भी काम किया. अब धीरे धीरे सब कुछ बैक टू नॉर्मल है. नॉर्मल तो है, बट हमारे लिए अभी भी ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा जाने का वक्त आ गया है. अभी तो बस यही है कि किसी तरीके से एक अच्छा सा फेयरवेल मिल जाए, तो हमारा एक एक्सपीरियंस अच्छा रहे, कि कॉलेज से हम कुछ अच्छी यादें लेके निकले. तो तुम फेयरवेल क्यों लेना चाहती हो? सर जाने से पहले एटलीस्ट कुछ तो अच्छे से मिले. तो जा कहाँ रही हो तुम, यही तुम्हें जानना चाह रहा हूँ कि कहाँ जाओ? कॉलेज सर आगे के लिए मैंने अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं आगे, मेरा थोड़ा नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है. मैंने कहा कि once a student is DME and DME Media School, so there is no goodbye anytime. I mean, you may be completing your BJMC, but you are very much there. तो जाना तो कोई है नहीं, इसलिए फेयरवेल किस लिए? लेकिन जो एनवायरनमेंट डेली का होता है, फ्रेंड्स, एक एंजॉयमेंट होता है, क्योंकि हमारी पूरी कॉलेज लाइफ घर बैठ के चली गई. वो हम एक फ्रेंडशिप, वो एक
एक अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए, एक साथ रहना बैठना। हमें याद है जब हम स्टार्टिंग में आते थे, एमफी नया नया तैयार हुआ था तब, एमफी थिएटर हमारा बहुत होता था, वहाँ प्रैक्टिस के बाद हम वहाँ बैठते भी थे, इवन हम खाते भी थे। कई बार बाला मैम भी वहाँ वो होती थी हमारे साथ, एंड वी वर लाइक कि मैम के सामने हम पहले नाटक करते थे एंड देन हम लोग बात करते थे, मैम हमें थोड़ा थोड़ा गाइड करती थी, ये करो वो करो। तो एक एनवायरमेंट होता था, मोहित सर होते थे। अब अचानक से सब कुछ बंद हो गया, तो हम थोड़ा सा एंडिंग मोमेंट्स हम थोड़ा जीना चाहते हैं अच्छे से, कि थोड़ा वापस हमें रिवाइव हो जाए। थोड़ा कॉलेज भी डिफरेंट हो गया, काफी थोड़ा सज धज गया है, पहले थोड़ा अलग था। तो दैट्स व्हाट आई थिंक। क्या क्या कॉलेज में क्या सज धज किया गया? मतलब आजकल नया कुछ पेंट वगैरह हुआ है, तो आज प्रॉपर हम लोग जैसे गए थे कॉलेज, जब हम आए थे तो इतना पेंट वगैरह नहीं था, प्रॉपर पेंटिंग वगैरह हो गई है वहाँ पे। आई थिंक डीएमई स्पेक्ट्रम की साइड से हुआ आई थिंक। तो वो भी काफी अच्छा है, हम लोग काफी फोटोज वगैरह क्लिक करा रहे हैं वहाँ पे। तो हम थोड़ा सा रिवाइव, एक होता है वो पुरानी। एक्चुअली ये सब कोशिश इसीलिए हो रही है कि तुम लोग ना जाओ, कॉलेज में ही रहो। हाँ तो सर जाना भी नहीं चाहते इवन। अभी जाने के मामले से ही हमारा दिमाग ऐसे हो जाता है, क्या करेंगे अब। क्योंकि काफी सपोर्ट मिला है आई थिंक। सबसे ज्यादा मेरे लिए तो बाला मैम ने मुझे बहुत गाइड किया है, पर्सनली डांटा भी है बहुत बार। और तुमने उनको परेशान भी काफी किया है। हाँ पॉइंट है, मैंने किया होगा। बट उनके साथ एक अलग लेवल का बॉन्ड भी है मेरा, मैं हमेशा सबसे पहले जाती हूँ तो उनसे मिलती हूँ। तो आई थिंक अभी तक मेरा एक्सपीरियंस जितना है, मैंने काफी कुछ सीखा है, चाहे वो वर्चुअली हो या चाहे वो फिजिकल मोड हो। मैंने काफी कुछ घर बैठ के भी सीखा, मतलब एक लर्निंग हमेशा हमारे बीच में रही। और मेरे लिए ये एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, चाहे वो वर्चुअली रहा या फिर लॉकडाउन आया। बट मेरे लिए स्टिल मैं आज भी डीएमई से बहुत कनेक्टेड हूँ। मुझे लगा नहीं कि मैं कहीं भी कनेक्शन मेरा टूटा डीएमई के साथ। तो तुमने वैसे क्या नई चीजें, जैसे पिछले साल भी हमने बात की थी लेकिन अब वो एक साल फिर हो गया, 21 से 22 आ गया, और क्या क्या नई नई चीजें तुमने सीखी? सर आज मैंने मतलब पहले मुझे रीडिंग की हैबिट नहीं थी, एंड आई थिंक मुझे बाला मैम ने काफी गाइड किया कि रीडिंग करो, और इसके बिना मैं तो सर अब मेरे अंदर थोड़ा सा एक न्यू आया है कि मैं थोड़ा सा स्टोरीज, क्योंकि मुझे रेडियो में इंटरेस्ट आ रहा है, मैं रेडियो करना चाह रही हूँ आगे भी। अब मैंने अभी एक इंटरव्यूज भी दिए हैं, तो मैं अभी लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। लाइक मैंने अभी मुंशी प्रेमचंद की गबन पढ़ी है, अभी पूरी नहीं हुई, एंडिंग बची है। तो मैं लिख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। मैं नीलेश मिश्रा को सुन रही हूँ, थोड़ा लिखने की कोशिश कर रही हूँ। तो आई वाज ट्राइंग टू राइट, मतलब मैं नई नई मतलब अलग अलग चीजों को लिखने का सोच रही हूँ। और अभी मैंने आई कैन के लिए मैं पेपर देखने के लिए भी सोच रही थी कि मैं एक रिसर्च पेपर दूंगी इस साल। सोच क्यों रही हो, उसको लिखा क्यों नहीं? हाँ मतलब लिख रखा है, मुझे मुदिता मैम के साथ मेरा डिस्कशन था उसे थोड़ा चेंज करने का, क्योंकि थोड़ा बड़ा है, उसे एडिट करना है। बट मुदिता मैम जा चुकी है, तो उन्होंने मुझे बोला कि वो मेरे साथ कॉल पे अटैच होंगी इस चीज की। तो अभी ये नई चेंजेस आए हैं, थोड़ा सा राइटर अदिति जागी है। तो वैसे यही, जैसे स्टूडेंट्स के लिए यही तुमने मुदिता मैम का नाम लिया, यही मैं बता रहा हूँ कि जो डीएमई में आ जाता है वो जाता कहीं नहीं है। वो लाइफ के अलग अलग फेजेस होते हैं, जहां पर आप कुछ और करना चाहते हैं तो नेचुरली आप करेंगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बट जो कनेक्ट है दैट रिमेन्स। जैसे मुदिता मैम हैज गॉन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस एंड ऑब्वियसली he she will always be connected and she may even come back someday, right? So okay, so moving on to you Rishabh, अगर मैं तुमसे यही सवाल करूं कि जिस तरह के चेंजेस पिछले 2 साल में हमने देखे, और खास तौर से तुम्हारा जो बैच था वो लॉकडाउन के पीरियड में ही आया और काफी विलंब से आया, क्योंकि एडमिशंस भी लेट थे, सारा कुछ लेट था 2020 में। तो उसके बाद खैर काफी समय तक तुम्हारे ज्यादातर क्लासेस ऑनलाइन मोड में हुए, बट देन एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। तो तुमने इस पूरे पीरियड को कैसे फेस किया या कैसे एंजॉय किया, और क्या वो सारी चीजें थी जो तुमने इस पीरियड में की, क्या क्या नई चीजें सीखी और किस तरह के तुम्हारे अनुभव हुए, क्या बताना चाहोगे? सर गुड आफ्टरनून सर। इस फेज की बात तो यही कहूंगा मैं कि एडमिशंस तो बहुत मुश्किल से हुए थे, जैसा कि पिछली साल भी आपको बताया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ये भी कंफर्म हो गया था कि लगता था कि अब तो ग्रेजुएशन भी हो ही जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से ऑनलाइन की आदत पड़ चुकी थी। और वो ना वो अरसा बहुत लंबा चलता था, क्योंकि वो जूम मीटिंग्स वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन चलती रही। सेमेस्टर फर्स्ट ईयर ऐसे ही निकल गया। बट अभी जब कॉलेजेस में आके देखा तो ऐसा लगता है कि जब जूम मीटिंग्स थी तो समय निकलता नहीं था। अब कॉलेज में पिछले 4-5 महीने हो गए, पता नहीं चला कि समय कैसे निकल गया।
अब समय निकल गया वो तो ठीक है, लेकिन सीखा बहुत कुछ है 5 महीनों में, जो शायद कि पिछले 9-10 महीने या 12 महीने की मैं बात करूं। क्योंकि कॉलेज में जो है आप देखोगे कि हर एक अगली बेंच पे एक बच्चा बैठा है जो किसी ना किसी स्किल्स में बेहतरीन है। तो आप जब क्लास में एंटर करते हो, मे बी आपके ग्रुप्स हो सकते हैं कॉलेजेस के अंदर, अच्छी बात है। लेकिन आप जिस भी स्टूडेंट के साथ यहाँ पर बैठोगे कॉलेज में, तो कोई ग्राफिक डिजाइनिंग में है, कोई बोलने में अच्छा है, कोई रीडिंग में अच्छा है, कोई शायद सोशल मीडिया मार्केटिंग में अच्छा है। तो इतनी सारी चीजें 5 महीने में सीखी हैं और इतने दोस्त बनाए हैं कि मतलब मुझे पता नहीं था, स्कूल में इतनी कभी परवाह नहीं रही कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। स्कूल वगैरह में मार्क्स आ गए, कंपार्टमेंट आ गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत चीजें रही। लेकिन जब से यहाँ आया हूँ तो खुद को ग्रो होते हुए देखा है मैंने। और जैसे स्टूडेंट्स हैं डीएमई के अंदर, मैं कहता हूँ कि ना एक ग्रुप में अगर 3 मेंबर्स भी एक्टिव हैं, अगर 5 बंदों के ग्रुप में 3 मेंबर्स भी एक्टिव हैं, तो वो 2 भी एक्टिव हो जाते हैं उन 3 को देख के। तो ये चीज मैंने यहाँ कमाल की देखी है। बाकी बहुत जल्दी समय निकल रहा है डीएमई में। मतलब मेरे जो सीनियर्स हैं, शायद वो अपना फाइनल ईयर था उनका और अभी वो कॉलेजेस आ पा रहे हैं, उतना एंजॉय नहीं कर पाए हो कॉलेज को, बट उन्होंने उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि जितने भी सीनियर्स यहाँ कॉलेज में आते हैं, वो फिलहाल उनमें दिखता है कि वो कहीं कुछ सीख के आए हैं या वो कहीं कुछ कर रहे हैं। और बहुत से सीनियर्स को मैं जानता हूँ, जैसे कि श्रेया झा हो गई, सिद्धार्थ कुकरेजा हो गए, आदिति दीदी हो गई, ऐसे बहुत से सीनियर्स हैं जिन्हें दिखता है कि हाँ, उन्होंने इस लॉकडाउन पीरियड को कैसे यूटिलाइज करा। तो मैं उनके साथ भी बैठता हूँ, सीखता हूँ। बाकी जो ऑफलाइन एक्सपीरियंस रहा है डीएमई में, वो बेहतरीन है। मतलब चाहे आप फर्स्ट फ्लोर पे जाओ तो आप स्टूडियो पे पहुंच जाओ, सेकंड में जाओ आपको लॉ मिल जाएगा, सारी धाराएं पता चल जाएंगी, आप थर्ड फोर्थ पे चले जाओ आपको किताबों का भंडार मिल जाएगा। तो हर जगह कुछ ना कुछ है डीएमई में। नहीं, उसके ऊपर भी है, वो सेमिनार हॉल भी है, मूड कोर्ट भी है, वो सारी। वहां वहां आप मिल जाएंगे कुछ बोलते हुए बच्चों को। और लाइब्रेरी जी का सर, वही लाइब्रेरी है यही तो एक्सपीरियंस। लाइब्रेरी का कितना इस्तेमाल करते हो? सर लाइब्रेरी का इस्तेमाल मैं बहुत कम करता हूँ, हम्म। लेकिन फिर भी मैं जितना लाइब्रेरी में गया गया हूँ और जो बुक्स है वहां पर, तो अगर आप बुक्स वगैरह लेना भी नहीं चाहते हो किसी सेमेस्टर में, या आप नहीं ले पा रहे हो, या और भी चीजें हैं कि आप चाहते हो अब तो सेमेस्टर खत्म होने को है, तो लाइब्रेरी के अंदर जो बीजेएमसी की मेन बुक्स होती हैं वो हैं फिलहाल। मतलब अच्छे राइटर्स भी हैं, कुछ आपकी भी बुक्स मैंने देखी है, तो वो भी काफी बेहतरीन है। मतलब पढ़ने लायक मटेरियल है उसमें, जिससे एग्जाम और सीखा जा सकता है बहुत कुछ, दोनों काम हो सकते हैं। Okay, so moving on to you, Khushi. Khushi, your batch has joined DME in 2021 only. This time also it was late, but not that late that your senior batch was. And within that limited time that you have been there in DME, you have got both online, offline experience, because for a month again the classes were closed due to the third wave. Though fortunately that did not last long and we opened completely again. So, but then when this COVID-19 happened, you were there in your 11th and the 12th standard. So obviously you would have suffered because of this kind of situation. So how will you express your experience of the last 2 years before DME and after DME? So actually I would like to say कि मेरा experience actually में it's sort of roller coaster, because मैंने 12th मेरा खुद का 12th 2019 में हुआ था. Then I took a drop for 1 year of NEET के लिए. Then उसके बाद COVID आ गया. क्या हुआ कि मैं जब NEET कर रही थी उस वक्त हाफ में मेरे को छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ कोविड. तो फिर मैं घर चली गई, फिर वहां गई, तो देन इट्स लाइक अब क्या करूं, क्योंकि नीट हो नहीं रहा, मतलब एग्जाम दे दी, अब क्या करूं इसका. घर कहाँ चली गई तुम? सब बिहार, मैं दिल्ली रहती थी पहले, साउथ हिल्स. अच्छा, नीट की तैयारी के लिए तुम दिल्ली में थी? हाँ जी, हाँ जी. बिहार में कहाँ रहती हो? बिहार से ईस्ट चंपारण. तो तुम यहाँ तैयारी, अच्छा जब कोविड लॉकडाउन हो गया देन यू वेंट बैक टू चंपारण? यस एक्चुअली चंपारण तो बड़ी इम्पोर्टेंट जगह है. किस लिए इम्पोर्टेंट है चंपारण? सर वहाँ पे दांडी मार्च हुआ था, गांधी जी ने वहीं से स्टार्टिंग की थी, तो इस वजह से वो मोस्टली इसलिए. ओके, और क्या है चंपारण में?
सर नेपाल का जो बॉर्डर है वो वहां से बहुत क्लोज है हमारे साइड से, स्पेशली जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो वहां से आप आई थिंक 2-3-4 किलोमीटर चलो जाओ, उसके बाद आप बॉर्डर के क्लोज आ जाते हो, नेपाल के बॉर्डर को, एंड देन यू कैन एंटर इनटू। तो तुम क्या 2-3 किलोमीटर चल के नेपाल चली गई थी कभी? नहीं सर, बट गई हूँ मैं नेपाल, एक्चुअली बहुत फनी एक्सपीरियंस है। मैं ऑटो से गई हूँ एक बार नेपाल, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स रहते हैं बहुत क्लोज, तो बहुत क्लोज रहता है, तो मैं उनके साथ चली गई हूँ ऑटो से 2-3 बार। अच्छा, कुछ रिलेटिव्स तुम्हारे नेपाल में हैं? हाँ, मतलब नेपाल की बॉर्डर के क्लोज रहते हैं मेरे रिलेटिव्स, तो हम लोग जाते रहते हैं, मतलब 2-3 बार तो मैं चली गई हूँ नेपाल। तो मतलब बॉर्डर पे कोई चेक नहीं करता? सर चेक करते हैं, बट वो है ना, हमारे पास होता है मतलब दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बिना डॉक्यूमेंट्स के तो एंटर नहीं करने देंगे ना, तो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो लोग तो विदेश जाने के लिए कितने एफर्ट्स करते हैं, तुम्हारे लिए तो आराम है, घर से अपने वॉक डाउन करते हुए चले गए। सर इसलिए तो बोलते हैं बॉर्डर है ना बगल में, तो जाना आसान है, तभी तो चली गई मैं 3 to 4 टाइम्स, करना चाहती है ऐसे। नहीं चलो, अच्छा है, अच्छा है। Yes. मतलब ये डिफरेंट एक्सपीरियंस है, दिल्ली वालों को ये एक्सपीरियंस नहीं मिलता। दिल्ली वाले बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो नोएडा आ जाते हैं, गाजियाबाद आ जाते हैं, इतना ही बॉर्डर होता है यहाँ तो। यस सर, यू आर राइट। हाँ चलो ठीक है, तो फिर क्या हुआ जब तुम वापस चली गई तो नीट छोड़ के? तो नीट की तैयारी तुम क्यों कर रही थी? सर एक्चुअली मैं जब व्हेन आई वाज लाइक मैं छोटी थी ना, तो मेरा ये था कि मेरे को डॉक्टर बनना है, तो मैंने कहा कि लेट्स टेक 1 year ड्रॉप एंड देन लाइक एक ईयर का वो करते प्रिपरेशन करते एंड देन उसके बाद विल डिसाइड। तो मैंने फिर प्रिपरेशन की, देन मैंने कहा कि एक्चुअली में मेरा इंटरेस्ट ये नहीं होता ना बच्चों का, कि नहीं छोटे होते हैं तो बहुत कुछ करना होता है, बट जब बड़े होते हैं तो आपको पता चलता है। तो मैंने 1 साल का किया, देन उसके बाद आई रियलाइज कि नहीं, मैं इसके लिए हुई नहीं, मेरे लिए नहीं है नहीं। तो देन आई मैंने क्या, ठीक है कोविड भी आ गया, टाइम भी चला गया, मैंने कहा ठीक है 2 years मेरा ड्रॉप हो गया। देन उसके बाद मैंने 1 year मेरा कोविड, देन 1 year मेरा ड्रॉप। तो उसके बाद मैंने कहा एक्चुअली मेरे को जर्नलिज्म करना, बिकॉज आई थिंक आई एम गुड एट स्पीकिंग एंड राइटिंग एक्सेट्रा। तो मैंने कहा चलो ये कर लेते हैं, और फिर उसके बाद मैंने IPO के फॉर्म भरे, देन यहाँ पे आई एंड टचवुड में यहाँ पे आई, तो मुझे इतने अच्छी टीचर्स फैकल्टी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज मेरा स्कूल लाइफ भी बहुत वैसे सा रहा है कि लाइक उतना कुछ गाइडेंस और ये सब नहीं हुआ। मतलब स्कूल लाइफ में तुम्हें अच्छे टीचर्स नहीं मिले ऐसे, बट एक होता है वाइब, मतलब फैमिली वाइब आती है, तो मुझे एक्चुअली यहाँ से आती है। फर्स्ट टाइम एवो मेरे को आती है, यहाँ पे हर एक फैकल्टी मेंबर बहुत ज्यादा सपोर्टिव है एंड बहुत गाइड करते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, ये ऐसे नहीं हो। सो इट्स लाइक मेरे स्कूल में ऐसा कभी नहीं रहा है, तो इसलिए मेरे को थोड़ी फैमिली वाइब्स आती है। तो ये तो उल्टा हो गया, जबकि स्कूल में ये होना चाहिए था, कॉलेजेस में तो ऐसा होता नहीं नॉर्मली। हाँ सर, नॉर्मली होता नहीं, तभी तो बोली टचवुड मेरे को ऐसा कॉलेज मिला है जहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स इतने अच्छे हैं कि वो आपको गाइड कर रहे हैं, चाहे आप हो। लेकिन खुशी, अगर तुम नीट कर लेती और MBBS कर लेती, तब भी तो तुम बहुत समाज के लिए बहुत कुछ कर सकती थी, क्योंकि इस देश में तो डॉक्टर्स की वैसे ही बहुत कमी है। सर यू आर राइट, एक्चुअली में कमी है, बट सर आप कर तो जब पाओगे ना जब आपको इंटरेस्ट होगा, जब आपको इंटरेस्ट नहीं आप करोगे कैसे? मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं गई पर हुआ नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं आया, तो मैंने फिर छोड़ दिया उसके बाद। और मुझे पता था मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, मतलब मैंने थोड़ा देर से रियलाइज किया, बट मुझे रियलाइज हुआ, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। तो और तुमने वैसे क्या कुछ नया सीखा इस 2 साल में? सर 2 साल में एक्चुअली मैंने थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया, तो मतलब मेरे को पता चला कि मैं राइटिंग कर सकती हूँ, एंड मेरे को लगता था मैं खाना नहीं बना सकती हूँ। मेरी फैमिली इज लाइक, मेरी मॉम हमेशा खाना बना, मैंने कहा मेरे को नहीं होगा, बट देन इसके बाद मैंने बनाया, तो मैंने थोड़ा बहुत खाना बनाना सीखा, तो 2-3 चीजें मैंने सर ये सब सीखी है। तो अब तो तुम PG में रहती होगी यहाँ पे दिल्ली में? यस सर, PG में रहती हूँ। तो यहाँ तो खाना बनाना नहीं पड़ता होगा, बच गई तुम खाना बनाने से? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है, आपको पता है यहाँ पे ना हमें 2 टाइम का खाना देते हैं, 1 टाइम का देते ही नहीं, तो उस वक्त तो खुद ही बनाना पड़ता है, कभी कभी तो खुद बनाना। एक टाइम मतलब दिन में नहीं देते होंगे? लंच नहीं देते सर, और फिर सुबह ब्रेकफास्ट भी कुछ उतना खास होता नहीं जो आप खा सको, तो फिर इसलिए मेरे को बनाना पड़ता है कभी कभी, मैं और मेरी रूममेट। बना के लाती हो? हाँ सर, कभी कभी लाते और कभी कभी नहीं लाते, छोड़ देते। अरे DME में तो इतनी अच्छी कैंटीन खुल गई है, अब क्या दिक्कत है? सर है कैंटीन, लेकिन होता है ना घर का खाना, लेके रोटी चावल, वो थोड़ी कैंटीन में मिलती है, वो तो खुद ही बनानी पड़ेगी ना, इसलिए। चलो अच्छा है, तुम्हारी प्रैक्टिस रहेगी तो तुम खाना बनाने के तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगी लाइफ में कभी। यस एग्जैक्टली, इसीलिए मॉम ने बोला कि सीख ले, बाहर जाना है तेरे को। चलो ठीक है, अच्छा। अदिति, मैं तुम्हारे पास आई कम टू यू अगेन नाउ, बिसाइड्स दिस COVID thing, now that's a thing of the past. Now you told us about many things about your campus life,
and how did you enjoy in DME and what all you learned. But if I talk very particularly, very precisely about your creative instinct, right? Whether it's singing or dancing or theater or whatever. So what all you will tell us about your creative side of your personality? तो स्टार्टिंग में बहुत कुछ था, मैं कंफ्यूज थी, मुझे क्या करना है, मुझे एंकरिंग करनी है, मुझे थिएटर करना है, मुझे क्या करना है। स्टार्टिंग हुई मेरी थिएटर से, उसी से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, क्योंकि थिएटर आपको काफी कुछ ओपन अप करता है, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस खोलता है। जब मैंने स्टेज पे 2-3 बार परफॉर्मेंस करी, 1-2 बार जीती, तो उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस खुला। फिर मैंने एंकरिंग करी, मैंने सिफी में एंकरिंग करी, आई डोंट नो सिफी या फिर अलोहा में करी, हाँ अलोहा में करी। उसके बाद फिर मेरा शिफ्ट हुआ एंकरिंग, क्योंकि घर हो गया, घर पे चली गई। तो मुझे एक और चीज अपने अंदर पता चली, जब मैं बाला मैम के साथ असाइनमेंट। घर चली गई क्या? तुम भी दिल्ली से नहीं हो? नहीं सर, जब लॉकडाउन हो गया तो हम घर पे आइसोलेटेड हो गए थे एक टाइप से, हम किसी से मिल नहीं रहे थे। उस मोमेंट में जब मैम, क्योंकि क्लासेस तो चल रही थी, प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे थे, तो रेडियो के प्रोजेक्ट्स मिलते थे बहुत ज्यादा, मैम ने बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए थे हमें। तो मेरे को वहां से इंटरेस्ट पता चला कि मेरे अंदर एक रेडियो के लिए भी है, क्योंकि मैं जब बोलती थी तो मैम को भी पसंद आता था, सबको पसंद आया था। फिर इसी रीजन से मैं रेडियो में अभी स्टिल मेरे लिए रेडियो, आई थिंक मैं फोकस रेडियो पे कर रही हूँ। और आई थिंक मैं अभी जो मेरी क्रिएटिविटी निकली है, तो मुझे वो ये क्रिएटिविटी निकली है कि मुझे वॉइस ओवर देने आए हैं अभी काफी अच्छे से, मतलब काफी इम्प्रूव हुआ है। क्योंकि मैं आज अगर उसको देखती हूँ और अपना फाइनल प्रोजेक्ट आज देखती हूँ, तो मुझे वो डिफरेंस पता चलता है कि मैंने कितना इम्प्रूव किया है। राइटिंग हो चाहे वो वॉइस ओवर हो, क्योंकि एज इन वॉइस ओवर आपको कहाँ पॉज लेने हैं, कैसे बोलना है, कितना ठहराव चाहिए, वो सब चीजों के लिए इस आई थिंक मेरा जो क्रिएटिव चीजें एनहांस हुई हैं, जो बड़ी हैं, वो इस लॉकडाउन में मैक्सिममली वॉइस ओवर, एज इन वॉइस ओवर बढ़ा है। तो मेरे लिए, इसलिए मैं बोलूँगी मेरी क्रिएटिविटी साइड में वॉइस ओवर ही आया है। बाकी सब थिएटर तो तुम्हारा रुक ही गया। हाँ, वो रुक गया, ऑलमोस्ट रुक गया, क्योंकि वो घर पे चले गए तो कहाँ थिएटर, कुछ हो नहीं पाता था। फिर घर में फैमिली है, कोई ना कोई डिस्टर्ब करता रहता है पूरा टाइम, कुछ बना लो, कभी ये बना लो। मतलब तुमने भी खाना बनाना सीख लिया? नहीं सर, मुझे पहले से ही आता था, वो तो उसमें कुछ ज्यादा ही हो गया, वो मास्टर शेफ बनाना शुरू कर दिया था मुझे, कभी ये बना दो, कभी वो बना दो। तो क्या कौन सी स्पेशल डिश बना लेती हो? सर मैं चिकन की अलग अलग डिशेस बना लेती हूँ, मुगलाई चिकन, फ्राइड चिकन, मैं मखनी पनीर बना लेती हूँ। अलग अलग, वो थोड़ा अब स्पेशलाइज्ड हो गया, अब थोड़ा सा, मतलब पहले ऐसे ही नॉर्मल था, अब थोड़ा स्पेशलाइज्ड हो गया कि ये भी बनाना है, वो भी बनाना है। कभी मंचूरियन बन रहा है, क्योंकि उस पीरियड ऑफ टाइम में कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, तो घर में मोमोज बनाए थे मैंने घर में फ्राइड राइस बनाए, तो वो घर का था वो पूरा। तो उस टाइम पीरियड ऑफ टाइम में मैंने काफी कुछ न्यू चीजों, मतलब होता है कि घुमा घुमा के क्या बन सकता है, ऐसे था। बिसाइड्स दिस तुम्हारा सिंगिंग में, डांसिंग में और बाकी चीजों में कितना इंटरेस्ट है? सिंगिंग में तो ऐसा कुछ नहीं, वो तो ऐसी है कि कभी कभार मन करा तो गा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। डांस था तो वो मैं स्कूल टाइम में काफी डांस कर चुकी हूँ। स्कूल के बाद मेरा वो अपने आप थोड़ा गया, क्योंकि मैंने शाह ऑडिटोरियम, तालकटोरा स्टेडियम, सब जगह मैंने डांस करा है। वो स्कूल के साथ ही था कि वो सिखाते थे और हम करते थे। उसके बाद वो अपने आप, जब मैं इस फील्ड में आई तो वो अपने आप छूटता गया, 10th के बाद से वो अपने आप छूट गया, क्योंकि 11th-12th मेरी साइंस में थी। तो वो पढ़ाई में कुछ ज्यादा घर वालों ने कहा कि पढ़ लो, 11th-12th साइंस में है, थोड़ी हार्ड भी हो गई थी। तो उसके बाद वो अपने आप ही छूट गया। मेरा मेन फोकस फिर यहाँ आके एंकरिंग में गया स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे वो रेडियो। तो मतलब सारा काम घर वालों के कहने पे ही करती हो, अपने से कुछ नहीं करती? नहीं सर, उन्होंने तो बहुत कुछ बोला था, उन्होंने तो कहा ही नहीं था कि तुम ये बीजेएमसी लो, उनका था कि तुम साइंस लो, कि मेरे घर में सारे IIT और नीट है, तो तुम ये किस लाइन में चली गई। उन्होंने बोला था BBA लो। इवन मेरा मैंने भी ड्रॉप करा 1 साल, मेरा BBA में DME ही निकला था, बट मैंने BBA छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे BBA नहीं करना था, मुझे BGMC ही करना था। तो घर वाले मान नहीं रहे थे। कि अब मान गए? मना लिया सर, वो समझाना पड़ता है। नहीं, उस समय तो मान गए, तो अब क्या रिएक्शन है 3 साल? अब तो they are like happy, वो बहुत खुश हैं, काफी खुश हैं। इवन उन्होंने अभी कुछ दिन पहले बाला मैम को थैंक यू बुलवाया।
मैंने भाला मैम को भी बोला जाके कि मेरी मदर आपको थैंक यू बोल रही है। हम्म, हाँ, तो अभी तक जिन्होंने उन्होंने मतलब जो भी मेरे में इम्प्रूवमेंट देखे हैं, तो अब वो बहुत खुश हैं और वो बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें इसी लाइन में जाना है तो जाओ, अच्छे से जाओ, हम सपोर्टिव हैं, तुम्हें सपोर्ट करेंगे। पहले नहीं कर रहे थे, पहले थोड़ा था कि मतलब डीएमई तुम्हारी डेस्टिनी में ही लिखा था, चाहे बीबीए हो चाहे बीबीएमसी हो। सर दोनों टाइम पे यही मिला था मुझे। और हम्म, नेक्स्ट टाइम बीजेएमसी में तो मैंने आंखें बंद करके सिर्फ ये डाला था कि मैं डीएमई ही लूंगी, और मैंने हम्म। सीधा अपनी शिफ्ट डाली और कुछ भरा ही नहीं था, वो मुझे पहले राउंड में ही मिल गया। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं वो तुम्हारा एक कनेक्शन होगा ना डीएमई से, वो पूर्व जन्म के संबंध नहीं होंगे, नहीं, इसी वजह पूर्व से जन्म आगे। के साथ नहीं थे सर। हाँ। एक्चुअली जब मैंने ड्रॉप किया तो मेरे साथ के काफी बच्चे डीएमई में आ चुके थे। हम्म, जैसे विशाखा शर्मा, हम्म, और एक दो और बच्चे हैं, पुलकित, ये सब आ चुके थे। तो मैं, मेरे लिए था कि वो मेरे सीनियर बन गए थे अब। तो उन्होंने मुझे काफी कुछ बोला था कि काफी अच्छा है, हमें पता है फैकल्टी अच्छी है, बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें, क्योंकि मैंने उनको देखा जब तक मैं आई, वो भी एक साल में काफी कुछ करने लग गए, इंटर्नशिप वगैरह। तो हम्म, मेरे को जब तक मैं आई तो मुझे लगा कि यही बेस्ट है, मुझे और कहीं लेना ही नहीं, मैंने यही भरा सीधा। हम्म, हम्म। Okay, so moving on to you, Rishabh again. ऋषभ, जब से भी तुम आए कॉलेज में, ऑफलाइन और ऑनलाइन, बट देन ऑब्वियसली यू वुड हैव डेवलप्ड सर्टेन टैलेंट, कुछ तुम्हारे पास पहले से होगा, कुछ तुमने नई चीजें सीखी होंगी, और लिखने पढ़ने से हो सकता है तुम्हारा और इंटरेस्ट बढ़ा हो, कुछ नई चीजें पढ़ी हो। क्रिएटिव साइड पे, क्रिएटिव साइड का एक्सपेंशन मेरे हिसाब से काफी बड़ा होता है, और हम जो कुछ भी करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, चाहे वो सिंगिंग डांसिंग तक ही सीमित नहीं है या थिएटर तक ही सीमित नहीं है, ड्राइंग पेंटिंग से लेके, और फॉर आर एक्सप्रेशन, अपने अभिव्यक्ति के लिए हम जो कुछ भी करते हैं वो क्रिएटिव इंस्टिंक्ट में हमारी शामिल हो सकता है। तो इस दृष्टि से अगर तुम देखोगे तुमने जो भी किया रिसेंटली 2 साल में, तो तुम्हारा कौन सा ऐसा क्रिएटिव इंस्टिंक्ट है जिसमें पहले से ज्यादा निखार आया, और कौन सी ऐसी नई चीजें हैं जो तुमने सीखी? सर जैसे कि पहले ना, जब इस कोर्स में नहीं था या इससे पहले था, तो बेसिक एडिटिंग आती थी, बेसिक डिजाइनिंग आती थी, थोड़ा बहुत, मतलब पब्लिक स्पीकिंग तो कभी की नहीं थी मैंने। तो यहाँ आया जब कॉलेज में, तो दोस्त वगैरह बने, कुछ नुक्कड़ नाटक में जाते थे, यहाँ वहां जाते थे, तो थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग वगैरह आई। तो यहाँ आके काफी कुछ हुआ। और जो होता है ना कि टुकड़े होते हैं, अगर आप एक प्रोडक्शन बनाते हो तो उसमें बहुत से जो पार्ट्स होते हैं, जब वो मिल जाए तब एक प्रोडक्शन का नाम निकल के आता है। हम्म, तो पहले पता था कि एडिटिंग होती है, मैंने कहा अरे एडिटिंग बड़ी अच्छी चीज है, ये है। हम्म, फिर यहाँ आया तो पता चला कि कैमरा भी होता है, फिर पता चला कि ट्राइपॉड भी होता है, फिर पता चला लाइटिंग भी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजों का जब मेल बना तो समझ आया कि एक प्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, और जर्नलिज्म में भी अगर आप हो इस फील्ड में, बीजेएमसी वगैरह भी अगर आप कर रहे हो, तो आपको सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। तो कंप्लीट नॉलेज जो आई मुझे यहाँ आई, बाकी थोड़ी बहुत चीजें आती थी मुझे, और आज भी मैं थोड़ा बहुत देखता हूँ खुद को, तो मैं पब्लिक स्पीकिंग कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर मुझे अंदर से ये लगता है कि सुन तो आपको लोग लेंगे, अगर आप अच्छा बोल रहे हो तो लोग आपको सुन लेंगे। आप उन्हें सुनाओगे क्या, उन्हें बताओगे क्या, उन्हें सिखाओगे क्या? तो आज मैं उस पॉइंट को ढूंढ रहा हूँ कि ऐसा क्या डेवलप हो सकता है खुद में, ऐसा कौन सा पॉइंट खुद में निकाल के ला सकता हूँ कि लोग मुझसे सीखना चाहें। और आज मैं वो चीज ढूंढ रहा हूँ कि ऐसा क्या मैं सीख जाऊं कि अगर मैं बोल अच्छा सकता हूँ तो मैं सिखा अच्छा क्या सकता हूँ। बात ये भी तो है, बोल तो बहुत लोग सकते हैं और बहुत कुछ। तो मैं ये चीज आज ढूंढ रहा हूँ, बस ये नहीं मिल पा रही है मुझे कि मुझे क्या बोलना क्या है और क्या सिखाना है, क्या करना है। तो हाँ, थोड़ा मतलब इसको इसको हम मीडिया की भाषा में कहें तो तुम्हारी जो सर्च है वो कंटेंट को लेके है, हाँ। जो कहना है वो क्या कहना है, कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें लोगों तक पहुंचानी है। और जैसे हम मीडिया में कहते हैं कि कंटेंट इज द किंग, कंटेंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली एक्सप्रेशन, योर आर्टिकुलेशन, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, कैसे आप कह रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या कह रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस पर निश्चित रूप से काम करने की जरूरत है। इसके अलावा और क्या करते हो तुम? अब जो बुक्स पढ़ते होगे, किस तरह की बुक्स पढ़ते हो? सर बुक्स वगैरह थोड़ा, मतलब जो बेसिकली लाइफ से रिलेटेड बुक्स होती हैं थोड़ी बहुत वो पढ़ता हूँ। आजकल थोड़ा मार्केटिंग की भी बुक्स पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो ऑनलाइन लोग कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं वो सीख रहा हूँ। बाकी कॉलेज में भी कुछ मैं सोसाइटीज में स्पार्क वगैरह में काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा
लीडरशिप क्वालिटी जो होती है मैंने अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स में देखी है। बहुत लोग मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे ही ईयर से हैं। तो मुझे लगा कि ये लोग अगर इन सोसाइटीज में इन्वॉल्व है शायद इसलिए इतना अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे भी इन सोसाइटीज से सीखना चाहिए। तो मैं आगे आया, मैंने काफी सोसाइटीज में अप्लाई करा और मैं वही सीख रहा हूँ कि जो मतलब क्योंकि कॉलेज में मैं देख रहा हूँ बच्चे बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे और बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं दिखते हैं मुझे कभी भी। तो मैं उनसे थोड़ा सीखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। कॉलेज में ज्यादातर मैं सीख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। जो स्पार्क की तुमने बात की, तो स्पार्क के बारे में कुछ और बताना चाहोगे? हाँ सर, स्पार्क मतलब स्पार्क एक सोसाइटी है जिसका कोई एक मोटिव नहीं है कि भाई पर्पस है कि एक नेशन बिल्डिंग पर्पस बहुत बड़ा है स्पार्क का, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही काम करना है। स्पार्क में आप सोशल सर्विस ले लो, आप नॉलेज ले लो, है ना, आप कल्चरल चीजें उठा के देख लो, तो स्पार्क सारी चीजें कवर कराता है। और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, मुझे लगता है ये ओवरऑल ग्रोथ के लिए जो स्पार्क है वो काम करता है। तो स्पार्क एक मुझे बेहतरीन सोसाइटी लगती है अपने कॉलेज में। बाकी की मैं बुराई नहीं करता हूँ, वो बहुत अच्छी है अपने वे में, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इसमें ज्यादा आया, तो मैं सोसाइटी को मैंने ज्वाइन करा स्पार्क को। So moving on to you, Khushi. Khushi, if I put up the same question to you with regard to your creative instinct, your talent, your interest. So what all you do, what all you have learned during the recent past, and what all you want to learn, because in your AV we have seen that you are interested in singing, dancing, and I mean whatever. So your creative side appears to be quite strong. So what will you tell us about your creative instinct? So actually singing तो नहीं, because जब मैं गाती हूँ तो लोग चले जाते हैं, तो मैं गाना तो नहीं बोलूंगी। डांसिंग मेरे को पसंद है बहुत ज्यादा, तो मैं डांस करती हूँ। और मैं तुम यहाँ सिंगिंग कर सकती हो, कोई जाएगा नहीं, तो ऑनलाइन है ना, तो कोई जाने वाला है नहीं यहाँ से। फिर जो लोग सुनेंगे बाद में वो जरूर नहीं सुनेंगे, पॉज करके चले जाएंगे, तो बेटर है मैं सिंग ना करूं। चलो ठीक है, सिंगिंग छोड़ देते हैं, आप बाकी चीजों के बारे में बताओ। यस सर, मेरे को डांसिंग पसंद है, मैं करती हूँ डांसिंग कभी कभी। आई लाइक टू डांस। एंड ऑल्सो मेरे को टाइम मैनेजमेंट आ गया। पहले मेरे को टाइम में से मैनेज नहीं होता था, मतलब लिटरली मेरी मॉम को मेरे को उठाना पड़ता था कि बेटा उठ, कॉलेज जा, सॉरी स्कूल जा, ट्यूशन जा, कर ये कर वो कर। मैं नहीं करती थी, अब मैं एक्चुअली मैं कर रही हूँ सब। तो टाइम मैनेजमेंट आई हैव लर्न। एंड ऑल्सो मैंने मल्टीटास्किंग सीख ली है कॉलेज आके कि मल्टीटास्किंग कैसे करते हैं। और मैं और उसमें एक्सप्लोर मतलब और सीख रही हूँ कि और भी इम्प्रूव कर पाऊँ खुद को। एंड ऑल्सो मेरे को स्क्रिप्टिंग में इंटरेस्ट है, मतलब स्क्रिप्ट लिखने में, तो मैं वो सीख रही हूँ थोड़ा बहुत कि कैसे करते हैं। एंड बहुत सारी सोसाइटीज में हूँ, तो सोसाइटीज में कैसे एक टाइम पे आप रह के और चीजें कर सकते हो, मल्टीटास्किंग और कैसे मैं तुम खुशी किस सोसाइटी में हो? मैं थिएटर सोसाइटी में हूँ। मैं सिने ट्रेजर्स वाली जो सोसाइटी है उसमें हूँ, स्पार्क में हूँ मैं। और से 2-3 सोसाइटी में कभी नाम नहीं याद आ रहा, इतनी सोसाइटीज और रेडियो सोसाइटीज में, रेडियो सोसाइटी में हूँ, सॉरी। सो देयर आर लाइक मेजर 4 सोसाइटीज है जिसमें एक्चुअली मैं हूँ और मैं काम कर रही हूँ। तो ये मेजर 4 है, बाकी भी है, बट एक्चुअली भी उसमें करूंगी आगे, तो फिर कर पाऊंगी। एंड ऑल्सो मैं फुटबॉल भी, मतलब फुटबॉल की जो हमारी कॉलेज टीम है, तो मैं उसमें भी हूँ। तो मैं फुटबॉल भी खेल रही हूँ फिलहाल। मैं बहुत सारी चीजें कर रही हूँ, मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ अभी एक्चुअली में। अच्छा, तुम फुटबॉल में किस पोजीशन पे खेलती हो? सर मैं डिफेंडर खेलती हूँ। एंड अभी मैं लास्ट जो हमारा मैच हुआ था उसमें मैंने डिफेंडर खेला था इनिशियल हाफ में, एंड देन उसके बाद मैंने अटैकिंग मोड खेला था। हाँ, मैंने दोनों मोड खेले हैं। फॉरवर्ड भी खेला तुमने? हाँ सर, फॉरवर्ड भी मैंने खेला है, तो अभी मैंने वो सब खेल लिया। तो क्या हुआ अभी जो रिसेंट तुम्हारे मैचेस हुए उसमें क्या रिजल्ट रहा? सर उसमें रिजल्ट ये रहा कि ऑफ कोर्स हम जीते तो नहीं, बट हम इतने बुरी तरीके से हारे भी नहीं। मींस हमारा 1-0 था, ऐसे था। तो हम ऐसे मतलब हम सीख रहे थे, बिकॉज हमारी न्यू टीम बिल्ड हुई है अभी। तो अभी हमारा ज्यादा प्रैक्टिस हुआ भी नहीं, इतनी प्रैक्टिस हमने इतना किया था कि लाइक 1-0 हम ले आए थे लास्ट में। और कितने मैचेस खेले हैं अभी तक? सर अभी तक एक ही मैच हुआ है, विच इज इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन, महाराजा अग्रसेन वाला। बस अभी वही हुआ, और अभी के लिए हम और अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आगे मैचेस आएंगे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, बॉयज की टीम कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग है फुटबॉल में?
सर है वो इसलिए है बिकॉज वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ना, और बहुत सारे लोग उनमें इंटरेस्ट भी लेते हैं, और हमारे में क्या है कि बहुत कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, बट वो भी धीरे धीरे ले रहे हैं और आ रहे हैं, तो हमारी भी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी जितनी बॉयज। हाँ, तो लेकिन तुम्हें बॉयज की टीम को पीछे छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए ना। यस ऑफ कोर्स विल डू दैट, ऑफ कोर्स विल डू दैट। तो मल्टीटास्किंग जब तुम कहती हो तो मल्टीटास्किंग से क्या तुम्हारा अभिप्राय है? व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन मल्टीटास्किंग? सब मल्टीटास्किंग इन द सेंस जैसे कि अभी मेरे को कॉलेज में अभी मेरे को एक ऑडिशन देना था एक डॉक्यूमेंट्री के लिए, तो अभी मैं वो ऑडिशन दूंगी, अभी मेरी आपके साथ मीटिंग चल रही है, मैं ये मीटिंग करूंगी, देन उसके बाद मैं घर जाऊंगी, फिर उसके बाद मुझे और भी कुछ काम है कॉलेज से रिलेटेड, वो खत्म करूंगी, फिर खाना भी है ऊपर, मैंने आपको बोला जो मुझे खाना भी देखना पड़ेगा बनाने का, तो मैं ये सारी चीजें एक साथ अभी कर रही हूँ, और वो भी सेम टाइम पे होता है, ऐसा नहीं मुझे 5 मिनट्स का भी कुछ ब्रेक मिल रहा है, सब मुझे सेम टाइम पे करना है। सो ऐसे इतनी सारी चीजें कैसे कर लेती हो? तुम्हें कोई मतलब कोई परेशानी नहीं होती इतना सारा काम एक साथ करने में? नहीं सर, इनिशियली होती थी जब आदत नहीं थी, बट अभी मेरे को आदत हो गई, तो अभी मैं कर लेती हूँ इजीली। तो तुम्हारे और फ्रेंड्स को पता है कि तुम इतना सारा काम कर लेती हो? सर पता है, कुछ जिनको पता होना चाहिए सर उनको पता है। तो ये तुमने औरों को भी ट्रांसमिट की जो प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है मल्टीटास्किंग की, तो ये औरों को भी ट्रांसमिट कर दो। हाँ सर की है, मैंने कुछ लोगों को की है, अब वो कर भी रहे हैं मल्टीटास्किंग। ठीक है, इट्स अ गुड थिंग ना। ये पॉजिटिव चीजें तो संक्रामक तरीके से बढ़नी चाहिए। एक आदमी की पॉजिटिविटी दूसरे तक, दूसरे की तीसरे तक पहुंचनी चाहिए, तभी हम सबको एक पॉजिटिव जोन में सबको ला पाएंगे। यस सर। Okay, so moving on to you, Aditi, again, though you have told us about the campus life, lot of things, but this question is very focused. I am asking you to tell us more about your teachers and your friends in the college. टीचर्स के बारे में अगर मैं सर कहूँ तो स्टार्टिंग में हमें पहले कृतिका मैम आई थी। जब मैं फर्स्ट ईयर आई तो कृतिका मैम थी, और मेरी उनके साथ एक अलग लेवल बॉन्डिंग हुई, और जैसे ही मतलब एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप हुआ वो चली गई। मेरे लिए बहुत डिसहर्टनिंग था। फिर टीना मैम आई, मैं उनसे भी बहुत खुश। अरे टीना मैम आई, उनसे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, एक वाइब कनेक्ट हो जाती है उनके साथ, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है कि हमने अपनी कोई प्रॉब्लम बोले तो वो फटाफट बता देती हैं कि ये ऐसे है, ऐसे ऐसे करो। तो हमेशा मतलब अभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं टीना मैम को कॉल कर लेती हूँ कि मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो मैम अभी भी बताती हैं, चाहे वो कॉलेज में नहीं है। टीना मैम के बाद सचिन सर आए, वो भी चले गए। सचिन सर के साथ तो हम फर्स्ट ईयर से ही बहुत कनेक्टेड थे, बट वो हमारे मेंटोर बने थे। हम बहुत खुश थे कि सर बने हैं मेंटोर। हम बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि यस मेंटोर सचिन सर बने। अब उनके साथ हम लोग बैठना, अभी उनके साथ तो पहले से ही बॉन्डिंग थी हमारी, वो अच्छे से सबको जानते थे पर्सनली, तो हमें था कि अब हमें इतना बॉन्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही बनी हुई है। अब तो हम सीधा सीधा जाके सर को बताएंगे, सर ये प्रॉब्लम है, ये बताओ। तो अब सर के साथ फिर से कनेक्शन स्टार्ट हुआ। बात उन्हें इतने में सर का एक मैसेज आ गया कि भाई मैं कॉलेज छोड़ रहा हूँ। हम लोग ऐसे सारे, हमारा पूरा सेक्शन ऐसे हो गया था, दुख में चले गए थे हम सब। क्यों चले गए सर? इवन मेरी क्लास की तो कुछ लड़कियां रोने भी लग गई थी सर के जाने पे। सर के जाते ही तो तुमने रोका क्यों नहीं उनको? बहुत रोका सर। अब उनका जेन्युइन रीजन था, उनका जो भी अपना पर्सनल रीजन था, हम ऐसे नहीं कह सकते थे उन्हें। उन्होंने तो अभी भी बोला है वो कनेक्टेड है हमारे साथ अभी भी। फिर उसके बाद मेधावी मैम आई, वो भी कह रही है मैं जा रही हूँ। अब अच्छा है, चलो तुम कॉलेज से जा रही हो, नहीं तो तुम और नुकसान करती डीएमई मीडिया स्कूल का। तुम पहले किसी से टीचर से कनेक्शन बनाती, फिर वो टीचर ही चला जाता। मतलब अभी मुदिता मैम से मतलब अभी आईकैन के लिए काफी बातचीत हो रही थी मेरी उनसे, वृतिका से, क्योंकि जब से उन्होंने मुझे इवेंट के लिए पढ़ाना स्टार्ट किया था मेरी, तब से उनसे थोड़ा था। आज उनको मैंने पेपर के लिए बोला था कि मैम मेरे को थोड़ा गाइडेंस दे दो एब्स्ट्रैक्ट वगैरह के लिए, तो वो मुझे बता ही रही थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि वो भी जा रही हैं। मैं शॉक आ रही, मतलब जिससे तो मतलब ये हुआ कि अब मुझे आज समझ में आया। अच्छा हुआ कम से कम इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे समझ में आ गया कि तुम डीएवी मीडिया स्कूल से 5 टीचर्स के छोड़ने के लिए जिम्मेदार हो। सर मैं नहीं जिम्मेदार हूँ, मेरा पूरा सेक्शन बेचारा रो रहा है। क्योंकि तुमने जिससे बॉन्डिंग बनी वो चला गया, तो तुम कहीं प्रॉब्लम तुम्हारी बॉन्डिंग में आ गई लगती। नहीं सर ऐसी बात नहीं है। फिर उसके बाद अभी सबसे ज्यादा मेरा जो स्टार्टिंग से लेके कनेक्शन बना है वो बाला मैम ही है, और वो ना कहीं जाए, बस ये है।
अब तो तुम ही चली जा रही हो, अब तो समस्या खत्म हो कोई गई नहीं, ना। हम चले जाए मैम तुम्हारे, हम कॉलेज में आके मिल तो सकते हैं, क्योंकि आई थिंक सीनियर्स आते रहते हैं, हमें मिलते रहते हैं, बीच में सीनियर्स आए थे, जो हमारे सीनियर्स हैं वो आते हैं, मिलते हैं, हमसे भी मिलते हैं। तो अब हमें है कि अगर हम चले भी गए तो हम मिलने आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि, तो ये है कि वो टीचर्स रहे, मोहित सर भी चले गए। बस अब रहने दो, काफी हो गया आज इस प्रोग्राम के लिए। 6 लोगों का नाम तो तुमने ले लिया, सर मेरा दुख बता रही हूँ ना मैं आपको। लेकिन सारे लोग गए हैं किसी खास पर्पस की वजह से गए हैं। वो उनका अपना पर्सनल था, जैसे पीएचडी करनी है, किन्हीं को हाँ, कुछ वही करना कह रहा हूँ, है। हाँ। सब अपनी फैमिली रीजंस और अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए ही गए हैं। यस, बट सर मेरा हमारा उनके साथ जैसे अभी भी कुछ लाइक सुकृति मैम है, मैं स्टार्टिंग में उनसे बहुत डरती थी, अब मुझे खैर उनसे डर नहीं लगता। तो मैं बहुत डरती थी पहले, मुझे उनसे बात करने में बहुत डर लगता था कि मुझे डांट देंगी वो। मनमीत मैम है, अभी भी मनमीत मैम के साथ भी है, क्योंकि उन्होंने काफी पढ़ाया है, मेरे रिसर्च पढ़ाई है, फिल्म एप्रिसिएशन पढ़ाया है। मनमीत मैम के साथ एक कनेक्शन है मेरा काफी अच्छा। काफी सारी टीचर्स हैं, मनस्वी मैम है, प्रमोद सर से तो मेरी आजकल ही बात होनी स्टार्ट हुई है, पहले बात नहीं होती थी। बट ये कि अब ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो मुझे हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम हुई है, इवन बाला मैम इज ऑलवेज देयर, वो भी हमेशा, वो तो मैसेज ये डालती है कि कॉलेज आके मिलो मुझसे, फोन पे बात। मतलब तुमने सबका नाम ले लिया मुझे छोड़ के। सर आपसे तुमसे कम बात मेरी आपसे ही हुई है। हाँ, मुझे आपके बारे में भी एक बात बतानी थी सर। एक्चुअली मैंने फरवरी में एक कोर्स ज्वाइन करा था, आरके मीडिया की साइट से निकल रहा था, तो मेरे को लगा कि चलो अभी कॉलेज स्टार्ट नहीं हुए, घर बैठने से अच्छा मैं कुछ सीख लेती हूँ। तो मैंने वो ज्वाइन कर दिया, और अनफॉर्चुनेटली उसकी क्लासेस अब स्टार्ट हुई हैं, सिर्फ सैटरडे संडे है, या संडे संडे बुलाते हैं। तो वहां पे मैं गई, उधर एक वेद प्रकाश नाम के सर हैं, उन्होंने जैसे ही मैंने उनको बोला मैं डीएमई से हूँ, तो उन्होंने सबसे पहले आपका नाम ले लिया और प्रमोद सर का नाम ले लिया और विशाल सर का सारे नाम ले लिया। उन्होंने सीधा बोला कि मेरी तरफ से हाय बोल के आना, उनको हालचाल पूछ के आना उनका। तो मैं सर अभी पूछ लेती हूँ। तो तुमने आगे तो मुझे बताया नहीं, ना फोन पे बताया, प्रोग्राम में अभी सर कल ही मतलब अभी मैं संडे को ही गई हूँ ना, 1 तारीख को मैं कॉलेज नहीं आ पाई, मेरे फैमिली फंक्शन था, इवन कल भी रात को मैं फैमिली फंक्शन में थी। तो मेरा 2 दिन फैमिली फंक्शन में चला गया, किसी की शादी वगैरह थी, तो इसलिए मैं अब कल ही आ रही थी, तो आज मुझे पता चला कि वो है फेस टू फेस है, तो फिर मैंने आज पहले ये करा। मैं रात को काफी लेट आई, तो मैंने आपको बताया, तो मैं कल आई रही थी, मैंने वो डिस्कस किया, तो मैंने कहा था पहले बाला मैम से पूछूंगी फिर आपसे मिलूंगी डायरेक्ट। तो लेकिन तुमने टीचर्स के बारे में तो बता दिया, स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के बारे में कुछ नहीं बताया। सर फ्रेंड्स में तो मैं, ये था कि मेरा ज्यादातर फ्रेंडशिप सीनियर्स में ही रही, क्योंकि मैं सबको पहले से ही जानती थी, काफी सारे लोगों को। वो चले गए, मेरी क्लास में मेरे 1-2 ही दोस्त हैं, ज्यादा दोस्त नहीं है, क्योंकि सारे सीनियर्स थे वो निकल लिए। तो क्लास में मेरे वो है आकृति है, रितिका है, अभिलाषा है, मतलब इन लोगों के साथ ही है मेरा डेली इन्हीं के साथ। स्टार्टिंग में नहीं होता था, अब ज्यादा होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं हमेशा थिएटर वगैरह में ही रहती थी। क्लास में मेरा इतना नहीं रहता था, मैं बाहर ही रहती थी हमेशा, या तो थिएटर में या कभी किसी फेस्ट में या बाहर किसी कंपटीशन में थी, तो मेरा इतना नहीं रहता था। मेरा टीचर से बॉन्ड अप हुआ काफी, सीनियर से काफी ज्यादा हुआ, अपनी क्लास वालों से मेरा 3rd ईयर में जाके हुआ, जब मैंने कॉलेज दोबारा आना स्टार्ट किया। मतलब तुम्हारा टीचर्स के साथ भी बॉन्डिंग है, सीनियर्स के साथ भी बॉन्डिंग है, कुछ हद तक अपने क्लास में भी है, जूनियर्स को तुमने छोड़ दिया पूरी तरह से। नहीं सर, नहीं। अभी जो ऋषभ है उसके साथ में मैंने काम किया है, मेरा स्पॉटिफाई पे एक शो गया था, एपिसोड गया था द्रौपदी चीरहरण, उसमें मैंने काफी सारे जूनियर्स के साथ काम किया, प्रिया मिश्रा के साथ काम किया। जब एक ट्रिब्यूट देना था हमें रेडियो सोसाइटी में, तो मैंने आरजे दिव्या को ट्रिब्यूट दिया था जब वो आई थी, तो उनके साथ मेरे को जो भी रोल्स चाहिए होते थे हमने सारे जूनियर्स के साथ, प्रिया मिश्रा है, अनन्या है, नंदिनी है, ये ऋषभ भी है, हैदर है, मतलब काफी लोगों से है सर। और जो जूनियर मोस्ट बैच है उसका क्या है? उनसे तो बिल्कुल बातचीत ही नहीं हुई सर। क्यों? मेरे को पता ही नहीं कौन है क्या है, क्योंकि जब तक वो आए हम लोगों का बिल्कुल ही, कॉलेज से हम लोग बिल्कुल ही एक तो ऑफ हो चुके थे, हम लोग इंटर्नशिप्स वगैरह में लग गए काफी ज्यादा, तो हम लोगों का कॉलेज में आना, थोड़ा मिक्सअप होना थोड़ा कम हो गया। अब वो लोगों का स्टार्टिंग से ही था, हमारी इतनी बातचीत नहीं हुई जूनियर्स से, और ना मैं किसी सोसाइटी में एज एन प्रेसिडेंट थी, तो मेरा डेली का यूजेज में बात नहीं होती थी। और तो तुम्हें आगे मिलना चाहिए, थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए ना। सर आऊंगी मैं, अब कॉलेज आऊंगी ना, फिर मैं पक्का करूंगी आप फॉर श्योर, मैं आपसे भी आके मिलूंगी पर्सनली। ठीक है। So Khushi, talking to you again, what will you tell us about your teachers' experience with the teachers and your friends in DIEM?
सो एक्चुअली मैं किसी स्पेसिफिक टीचर का नाम नहीं लूंगी बिकॉज हर एक वो टीचर पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होगा इसलिए। पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो रही हूँ। मैं बस बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हर एक टीचर, चाहे आप हो, चाहे मनस्वी मैम हो, चाहे बाला मैम हो, चाहे सुकृति मैम हो, प्रमोद सर, श्रुति मैम, ममता मैम चली गई है, सचिन सर चले गए, बट सबने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मेरे को सिखाया ही है, बहुत चीजें सिखाई है, बहुत इंप्रूवमेंट लाई है मेरे अंदर। तो फिर किसी एक स्पेसिफिक टीचर का नाम लेना जस्टिफाइड नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं लूंगी। तो इस वजह से, और सर फ्रेंड्स तो बहुत सारे बने हैं, पर ऑलमोस्ट हर एक सेक्शन में या फिर हर एक इंसान फ्रेंड्स है, सीनियर्स भी फ्रेंड्स है, चाहे थर्ड ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो, तो सिर्फ फ्रेंड्स तो सभी हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं कोई स्पेसिफिक है जिसका नाम ले लो, ऐसा तो है नहीं सर। तो इसलिए तुम्हारा सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है? सर सबसे अच्छा फ्रेंड मतलब सर मोस्टली मैं जिनके साथ रहती हूँ तो देयर आर 5 to 6 to 7 पीपल्स जिनके साथ मैं डील रहती हूँ, बिकॉज 4 पीपल्स आर इन लाइक हम पीजी में साथ में ही रहते हैं, तो इसलिए एंड 3 to 4 है जो हम जिनके साथ कॉलेज में भी रहते हैं, सो हमारा ऐसे 7 है लोग जिनके साथ मैं रेगुलर रहती हूँ। अच्छा, तुम बहुत सफाई से सबके नाम बचा लेती हो, जैसे कोई ये शिकायत ना करे कि मेरा नाम नहीं लिया ना। नो सर, मैं नाम नहीं बचा रही सर, अब मैं सर नाम लेके क्या कर लूंगी, वैसे भी कोई सब थोड़ी जानते हैं, मैं नाम लेके कर ही क्या लूंगी, तो बेटर है कि ना ही बोलो, जिनको जानना है। फ्रेंड्स मतलब क्लास में कितने फ्रेंड्स हैं तुम्हारे, कौन कौन फ्रेंड्स हैं? सिर्फ वही बोल रही हूँ, क्लास में तो वैसे सबसे इंटरेक्शन है तो सभी फ्रेंड्स है, बट मैं स्पेसिफिकली आपने पूछा तो ओनली 7 पीपल जिनके साथ मैं रेगुलरली रहती हूँ। बात तो सबसे होती है, फ्रेंड्स तो सभी होते हैं, बट ऐसे रेगुलर 7 पीपल से जिनके साथ मैं मोस्टली रहती हूँ, अदरवाइज मतलब है सबके साथ ऐसे वाला है। तो डीएमई के कैंपस में जब से भी तुम आई हो, तुम्हें सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? तो सबसे अच्छी चीज मुझे एक्चुअली में यही लगती है कि जो हमारे कॉलेज की मीन्स आप लोग, स्पेशली आप लोग टीचर्स हो या फिर जो हमारे सीनियर्स हो, वो लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं हमें कि नहीं तुम ऐसे करो, तुम वो करो, इस चीज में करो, तुम इसमें अच्छे हो, तुम उसमें अच्छे हो, ऐसे करके। सो इट्स ऑलवेज बीन लाइक टीचर्स एंड सीनियर्स एंड ऑफ कोर्स फ्रेंड्स। यस सर, तो Okay, so moving on to you, Rishabh. Rishabh, what will you tell us about your experience, your interaction with your teachers and your friends in DME? सर टीचर्स के साथ अगर मैं बताऊं तो डीएमई के अंदर मतलब क्या है कि जैसा मैंने स्कूल में देखा है, स्कूल के बाद मैं जब कॉलेज में आया हूँ, तो आपको डीएमई के अंदर एक चीज दिखेगी कि टीचर और स्टूडेंट्स का जो बॉन्ड है, आप स्कूल में क्या होता है, अरे वो सर आ रहा है, चलो क्लास के अंदर चले जाओ, अरे वो मैम आ रही है, चलो चलो। यहाँ पे वो नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे बेहतरीन है, डर है टीचर को लेकर, डर से ज्यादा है रिस्पेक्ट। और मुझे लगता है कि अगर एक टीचर को लेके आपको रिस्पेक्ट आ गई, आप उसे रिस्पेक्ट करते हो, कोई भी एक टीचर नहीं, आप कॉलेज में जितने भी टीचर्स ले लो, तो माहौल वैसे ही मेंटेन रहेगा। टीचर को आपको झाड़ लगाने की जरूरत नहीं है कि तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो वो चीज मैंने यहाँ देखी है कि टीचर्स को ना ज्यादा बहुत डिसिप्लिन रहता है सारा कुछ। टीचर्स डिसिप्लिन के मामले में उतना ज्यादा नहीं। असाइनमेंट्स को लेकर मैंने देखा है काफी दिए जाते हैं, और असाइनमेंट्स भी इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो बच्चे वो चीज को करें या लिखें उस रिलेटेड सब्जेक्ट से, तो असाइनमेंट भी एक अच्छी चीज है। बाकी कॉलेज के अंदर सारी फैसिलिटीज ही हैं, मतलब जो एक मीडिया के तौर पे अगर मैं कहूँ तो कॉलेज के अंदर सारी फैसिलिटीज हैं। अब मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और आज मैं कॉलेज आया हुआ था अपने यही डीएमई में, तो अब मुझे भी ये सेशन लेना था, तो थोड़ी शांति की जरूरत थी। तो टीचर्स ने कोऑपरेट करते हुए मुझे स्टूडियो में कहा कि बेटा आप यहाँ जाके सेशन ले लो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि टीचर्स ने मतलब बाकी चीजों को साइड में करते हुए, वैसे भी सारे टीचर्स का बिजी शेड्यूल रहता है, स्टूडियो में शूट होने हैं, 10 चीजें होनी है, बट उन्होंने बोला सुमंत्रा सर ने कि बेटा जी आप जाके कर सकते हो, ये इतने से इतने टाइम स्लॉट में अवेलेबल है, तो आप अपना सेशन शांति से ले सकते हैं। ये चीजें हैं, तो ये मुझे अच्छा लगता है कि टीचर्स हर बच्चे को प्रायोरिटी देते हैं कि आपका ये काम है तो आप करो, आपका ये काम है। कोई किसी टीचर्स का फेवरेट स्टूडेंट नहीं है, जो टीचर से सीखना चाहता है आके, टीचर आया उसने तुम्हें लेक्चर दिया चला गया, लेकिन नहीं, उसने कहा कि आज ये बच्चे हैं इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, चलो इन्हें स्टूडियो ले चलते हैं, आज कैमरा के दिखाते हैं कि क्या बटन से क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये चीज है कि बहुत ज्यादा है, मतलब एक अच्छा। अपने 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 फ्रेंड्स के बारे में क्या बताना चाहोगे? फ्रेंड्स मेरे सारे ही अच्छे हैं, मेरा तो पूरा मतलब सेकंड ईयर के तो सारे ही मेरे दोस्त हैं, कोई दुश्मन है ही नहीं, तो सभी फ्रेंड्स हैं। लेकिन तुम्हारे अपने अपने सीनियर बैच में किसी से फ्रेंडशिप नहीं?
सीनियर्स में भी है, फ्रेंडशिप तो नहीं है, लेकिन मैं उन्हें रिस्पेक्ट करता हूँ, भैया दीदी करके बात करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि मैं उनके साथ कभी मूवी देखने गया हूँ, कभी घूमने गया हूँ, सिर्फ काम से रिलेटेड बात होती है। और फ्रेंडशिप ऐसी है कि मुझे कभी डायरेक्शन भी चाहिए होगा लाइफ में, कहीं पे मैं सफर करूं या कुछ समझ नहीं आ रहा या कोई चीजें हैं, तो फोन लगा दो और उनसे बात करके समझ लो। यही तो एक फ्रेंडशिप है, चाहे वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो या सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में हो, यही होती है फ्रेंडशिप। तो सभी से है मेरी। तुम्हारे पास जो ये एक कला अच्छी है, ये मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। जैसे हम हिंदी में कहते हैं वाक पटुता या जो आर्टिकुलेशन है, तुम बहुत अच्छे तरीके से जो बात कहना है वो सफाई से कह जाते हो। ना सर, मैं बस ऐसे ही कह रहा हूँ जो कहना है, उसमें कोई लेकिन सफाई की लेकिन जरूरत ही लेकिन लेकिन सीनियर बैच में तुम कितने लोगों को जानते हो? अदिति तो अभी कह रही थी तुम्हें जानती ही नहीं। नहीं। आदित्य दीदी जानती हैं, कैसे नहीं जानती हैं, बिल्कुल जानती हैं। ये तो शायद मैं मीटिंग में नहीं था, ये सर आप ही कह रहे हैं, आदित्य दीदी तो नहीं कह सकती है। ठीक है। और बाकी भी और भी सीनियर्स हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, खासकर मैं उन्हें जानता हूँ जो काम कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा है ना कि आप कॉलेज में आते हो सीखने के लिए, ना कि व्यवहार बनाने के लिए कि हाँ लड़ाई होगी तो ये 4 भैया लोग आ जाएंगे यहाँ। नहीं, ये लोग हैं जो काम करते हैं, 4-5 सीनियर्स मेरे, जिनको मैंने देखा है, जिन्हें मैं जानता हूँ, जो कॉलेज आते रहे, तो उन्हें मैं जानता हूँ, उनसे ही मैं बात करता हूँ। तो चलते हैं अब कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। सो Aditi, I will ask each one of you to make any final statement, anything that you want to say, want to express, which I would not have asked, but still you want to say. So I would like you to make a very, very brief statement, anything that you want to state in the final leg of the program. So starting from Aditi, what would you like to say? सर मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस ही बोलूंगी। मेरे लिए ये डीएमई की जो कॉलेज लाइफ थी मेरे लिए बहुत अमेजिंग रही है, जितनी रही है, जितना मैंने इसे जिया है। अभी भी मेरे मतलब सीनियर्स हो या जूनियर्स हो या फिर अपने बैच के हो या टीचर्स हो, मैं सबके साथ अच्छे से घुल मिल के रही हूँ। मैंने हर एक चीज में इन्वॉल्वमेंट दी है, मैं हर चीज को सीख पाई हूँ। मेरे अकॉर्डिंगली जितना हम अलग अलग चीजों में जाएंगे उतना हम न्यू कुछ सीख पाएंगे। अगर हम अपने ही शेल में रहेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। कुछ नया सीखने के लिए मुझे निकलना पड़ेगा। तो मैंने थिएटर करा, रेडियो करा, मैंने काफी कुछ किया। मेरे लिए डीएमई काफी अच्छा रहा, स्पेशली बाला मैम। मैं तो अभी बाला मैम को बोलूंगी, क्योंकि अगर आज उन्होंने मुझे, अगर मेरे असाइनमेंट्स मुझे बार बार रिजेक्ट करके नहीं दिए होते तो आई थिंक मैं इतना इम्प्रूव नहीं कर पाती जितना मैंने आज किया है। तो मेरे लिए लर्निंग हो, फ्रेंडशिप हो, ऑल ओवर एस्पेक्ट से मेरे लिए डीएमई इज लाइक, मेरे लिए बहुत अच्छा रहा ओवरऑल। अगर मैं कहूँ मेरा अब तक के लिए एक्सपीरियंस बहुत प्यारा रहा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं मुझे और अच्छा मिले ना मिले, ये मेरा बेस्ट है अभी तक। तो नाउ व्हेन यू विल पास आउट, तब तुम्हारे कंधों पे जिम्मेदारी और ज्यादा आ जाती है कि जो तुम्हारे यंगर लॉट आएगा डीएमई में, सो यू हैव टू गिव डीएमई बैक। तो तुम्हें आगे उन लोगों की, यू हैव आल्सो टू टेक केयर ऑफ योर जूनियर्स इन द फ्यूचर जनरेशंस व्हिच विल बी कमिंग टू डीएमई। Okay, so moving on to you, Rishabh, what would you like to say? Any final statement? सर, डीएमई के बारे में तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन पिछली साल की बात करूंगा कि पिछली साल मैंने एक बात बोली थी कि ना, आप लाइफ में जो चीजें आपको मिल रही हैं आप उनसे सीखते रहो, ठीक है, या करते रहो, सारे डायरेक्शंस में जाओ। और इस 1 साल के बाद भी मैंने बहुत चीजें सीखी, तो इस बार एक नई स्टेटमेंट जोड़ूंगा कि अपना अप्रोच एक्शन ओरिएंटेड बनाओ। तुमने आज कहा कि मुझे ये आइडिया एग्जीक्यूट करना है, कोई भी बड़ा आइडिया, बड़ा प्रोडक्शन, बड़ी मूवी टाइम नहीं लेती है जब तक आप उस पर काम करना शुरू नहीं करते। आपके दिमाग में आइडिया आया, आप काम करना शुरू कर दो। आप डरो मत कि क्या होगा। अगर तुम सोशल वर्क करना चाहते हो, तुम सोशल वर्क करो, उसमें क्या फेल हो जाओगे तुम जितना अपनी लाइफ में लोगों को डिलीवर करोगे, जितना अपने आप को दोगे, उसमें कोई फेलियर के चांसेस ही नहीं होते हैं। अगर बोलना चाहते हो तुम बोलो, क्या होगा। मुझे इंग्लिश में फियर है, मैंने ये खुद से तय करा है कि इन वेकेशंस में मुझे ये चीजें सीखनी है और अच्छा करना है खुद को। अब मैं अगर इंग्लिश गलत बोल जाऊंगा तो कितनी बड़ी इंसल्ट होगी। अगर मेरे डीन सर है, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ इंग्लिश में, मैं गलत बोल रहा हूँ, कितनी बड़ी इंसल्ट है ये मेरे लिए, मुझे समझ नहीं आता। मुझे लगता है तुम जो करना चाहते हो तुम करो,
तुम अगर फेल हो जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने सीखा क्या, और तुम्हें लगेगा कि अगली बार मैं ये कर सकता हूँ। और तुम अगर फेल हुए और तुम्हें लगा कि नहीं यार इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है इसलिए फेल हो रहा हूँ, तुम उससे हट जाओगे। लेकिन तुम अगर हर चीज ट्राई कर लोगे तो एक समय पे जब तुम जिंदगी में पहुंचोगे तो तुम्हें पता होगा कि हाँ मैंने ये चीजें ट्राई करी, इनमें मैं बेहतर नहीं था लेकिन ये चीज निकल के आई। जहां पे मैं 10 बार फेल हुआ लेकिन 11वीं बार जब मैं पास हुआ ना, तो आज तक इस इलाके में या कह लो इस स्टेट में या इस इंडिया के अंदर कोई इंसान नहीं है जो मुझे इस चीज में फेल कर दे। और अगर कर पाएगा तो फिर मैं और बेहतर देके अपने आप को प्रूव करूंगा इस फील्ड के अंदर। तो बस ये हो Okay. सकता है कि आप अपना हम्म। एक्शन और रखो, जो भी मन में कर दो। So Khushi, any final statement that you would like to make? तो मैं बोल रही थी कि अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस तो मतलब जो भी 5 मंथ एक्सपीरियंस रहा बहुत सही रहा है, तो बहुत अच्छा रहा, मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मतलब सबसे बहुत कुछ सीखा है, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे कोई भी हो। और मैं अभी आगे और मैं इनफैक्ट बहुत सी सोसाइटीज में, तो उनसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं। मेरी पब्लिक स्पीकिंग और भी ज्यादा इम्प्रूव हुई। पहले मैं बहुत ज्यादा ऐसे हेजिटेट करती थी, इनफैक्ट शिवर करती थी, बट अभी मैं बहुत हद तक मैंने बहुत सारी चीज सीखी। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैंने ये सब सीखा है। मैं आगे भी और भी, मेरा एक्सपीरियंस अभी ऐसा रहा है, एंड आई होप और भी अच्छा हो इससे अगले के 2.5 साल। Okay, so with this note, we finish this program, the today's chat show face to face. And if I can sum up this whole session, it was really interesting. And Aditi further tried her best to make it more interesting. And what we learned from this session, that this bonding has to be strong, and both Aditi and Rishabh emphasized on this. The bonding has to be strong between one student and another student, and and between the teachers and the student, because it's always an atmosphere of learning which matters, wherein each one of us are learning from each other. Also, I support whatever Rishabh said, that we have to have an action-oriented approach. Ideas are important, but the execution is equally important. If you are thinking something, that has to be translated into practice. And as Khushi also said, that DME provides an atmosphere wherein the learning becomes faster. As she said that she has learned so many new things during a short span, and as Aditi and Rishabh, you also said that you have learned a lot while remaining in DME, and there can be no better thing than this, that when you are in an educational institutions, you are learning what is necessary for your growth, and that makes you capable to handle the things when you will join the industry. So with this note, I wish all good luck to each of the participants here, and I thank you all and all the participants in this session. Thank you all.